Assalamualaikum, everybody. Assalamualaikum, class 3. How are you? Good morning. अस्सलाम वालेकुम टीचर। Walaikum assalam. जी जनाब. How is everybody? आज हमारे पास बच्चे इतने कम क्यों हैं भाई? यस हमारी टीचर। क्लास हाँ जी, आज बच्चे कम हैं क्यों भाई? सबको ज्वाइन करना चाहिए. Where is all the other students? अच्छा भाई, आज हम अपना काम कंप्लीट करने वाले थे. जो हमारा प्रीवियस काम था वो सब कंप्लीट हो चुका है. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज अ पोएम. और वो बड़ी जबरदस्त पोएम है, रॉबिन. Dorothy meets the scarecrow. We have finished the chapter. Now we are going to start a new poem that is Robin. It is on page number 10. Please open page number 10. Everybody must open the book. Page number 10, 1010. टीचर पेज नंबर बताइएगा। Page number 10, 1010. टीचर जिसके ऊपर में चिड़िया बनी हुई है ये ना। Exactly. This beautiful bird is called Robin. मिस यही। यही वाली. ओके चल। जी बेटा. song sweet man the day Now everybody will start bright. reading. Thank you for sun. You will soon be seeing on the screen also. Yes teacher. English. This is the poem Robin. अच्छा, आप बिल्कुल खामोशी से बैठना है. Very quietly you have to sit in the class. और मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी और आपसे सवाल भी पूछती जाऊंगी. It is a very beautiful bird, Robin. Robin sang sweetly when the days were bright. Thanks, thanks for summer. He sang with all his might. This poem is about Robin who sang sweetly in all the 4 seasons. Whatever the season is, summer, winter, autumn, spring, in चारों seasons में Robin never stopped singing. हर बात वो अपना sweet सा गाना गाती रहती. Robin sang sweet in the autumn day. There are fruits in everyone. Let all give praise. Assalamualaikum teacher. Walaikum assalam. अच्छा जनाब, अब मैंने आप लोगों को सबको माइक को म्यूट किया हुआ है. आप लोगों के सिर्फ आप क्या करेंगे, अभी मेरी बात को, मेरे लेक्चर को गौर से सुनेंगे. Then we'll start some copy work, right? Robin sang sweetly in the autumn days. There are fruits for everyone. Let all give praise. Acha, I told you in the start of the lecture that this robin, a very beautiful small bird, Robin sang sweetly in the summers. Robin sang very sweetly in the autumn also. Autumn is the season when the leaves fall from the trees. Autumn वो season होता है जिसको हम पतझड़ in उर्दू, और जिसमें दरख्तों से पत्ते गिर जाते हैं. लेकिन उस season में भी Robin says there are fruits for everyone. So she is a very happy bird, or he is a very happy bird, Robin. और वो हमेशा ये कहता है कि let all give praise to the Almighty Allah who has made everything.
who has made all the seasons and all the things for us. And we should praise Almighty Allah. And you know what? हमें अल्लाह ताला का हमें पता है ना कि शुक्र अदा करना चाहिए. Even the small bird robin is also praising by sweet songs sung by the robin. उन छोटे छोटे प्यारे से खूबसूरत स्वीट गानों से वो ये बता रही है कि we should thank Allah Taala, we should thank our Almighty Allah for creating this beautiful world, this beautiful season like autumn season or the summer season or the cold winter season or the spring. In every four season, the robin is able to love and hear the sweet song of robin. Robin never stops singing actually. In the cold and wintry weather, still hear his song. Somebody must sing, said Robin, or winter will seem long. अच्छा रॉबिन एक और बात भी कह रही है देखो इट्स वेरी कोल्ड इन द ऑन द स्क्रीन यू कैन सी कि विंटर में भी जब बर्फ बिल्कुल जमी हुई है द रॉबिन इज स्टिल ऑन द ब्रांचेस स्टिल सिंगिंग द स्वीट सॉन्ग एंड स्टिल सेइंग कि लुक somebody must sing और विंटर जो है ना फिर हमें बहुत लंबा लगेगा it will be boring and if the song of the robin is not heard by anyone or everyone the winters will seem so long and boring. So Robin is still saying that I will not stop singing in any season. I will sing in every season, like summers or autumn or in cold winter. You know, सर्दियों में क्या होता है हम इंसान क्या करते हैं we are just packed up inside blankets में घुस जाते हैं हम और हम भी will not go out हमें अच्छा नहीं लग रहा होता है हम cozy blankets में घुसे हुए होते हैं लेकिन Robin still out still singing the sweet song for everyone क्योंकि winters बहुत लंबे लगेंगे and you will get bored if you will not hear the song of Robin आपको लगेगा बोर हो रहे हैं just like the humans humans हम लोग इंसान क्या करते हैं जब सर्दी आती है या बहुत कोल्ड सीजन होता है या बर्फ जम रही होती है बहुत सर्दियां होती हैं इन दिसंबर जनवरी व्हाट यू विल डू हम क्या करते हैं हमारी वेकेशन हो या ना हो हम स्टिल कोजी अपने आप को फील करते हैं गरम गरम ब्लैंकेट में घुस जाते हैं ईटिंग द पीनट्स और हम एंजॉय कर रहे होते हैं बट वी वोंट गो आउट हमें लगता है हम बाहर नहीं जा सकते हैं बर्फ पड़ रही है या बहुत सर्दी हो रही है बट रॉबिन देखो कैसी अच्छी स्वीट बर्ड है जस्ट टू प्रेज द ऑलमाइटी अल्लाह's क्रिएशन अल्लाह ताला की बनाई हुई तमाम चीजों को अप्रिशिएट करने के लिए बताने के लिए वो सॉन्ग सिंग करती रहती है रॉबिन मुस्तकिल रॉबिन जो है वो बाहर होती है मुस्तकिल रॉबिन सिंग करती रहती है इन द विंटर सीजन आल्सो एंड वो ये कहती है कि मुझे लगता है कि आई डू नॉट डू दैट मैं गाना नहीं गाऊंगी तो हमें लगेगा विंटर्स बहुत बोरिंग और बहुत लंबे हो गए दिस इज अ वेरी क्यूट एंड beautiful robin in spring season because you can see the picture the flowers are blooming the fruits are on the branches so in summers in winters in autumns robin never stops singing and in the spring when the flowers are blooming new plants new leaves are growing on the leaves robin again said when the spring came back again he sang I told you so keep on singing through the winter it will always go every season will move on every season will go and the next season will come by but the robin will not stop singing. Robin is the bird which is continuously singing the whole year. Throughout the year, pure saal, Robin, very beautiful small bird, never stops singing. वो हमेशा जो है वो गाती रहती है and it's chattering and it's singing. Always, loved by everyone. हम सबको, चिड़ियों की आवाज कितनी अच्छी लगती है ना कभी सोचो कि अगर अल्लाह ताला की बनाई हुई ये छोटी सी मखलूक अपनी आवाज बना सुनाना हमें बंद कर दे चहचहाना चैटरिंग करना आवाजें निकालना चिड़िया चू चू करती है तो हमें लगता है कि बड़ी लाइवली आवाज होती है ये बंद कर दें तो कैसा लगेगा हर चीज बिल्कुल खामोश हो जाएगी whenever you will wake up early in the morning you will hear the first चीज क्या होती है या तो कोई कुकू बर्ड होती है या तो कोई
मुर्गा होता है, वो आवाजें निकाल रहा था, दाने दे रहा होता है, तो यू फील लाइवली, यू फील द लाइफ आउटसाइड. अपने घर में तो एवरीबडी इज स्लीपिंग, बट यू कैन हियर द सिंगिंग एंड chattering ऑफ द बर्ड्स ऑल अराउंड यू. अगर आप सुबह सुबह उठे तो आपको हल्का हल्का अंधेरा हो रहा होता है, सूरज हल्का हल्का सा निकल रहा होता है, बट अल्लाह ताला की ये मखलूक, अल्लाह ताला की हमदो सना जिसको कहते हैं कि just every time everybody, every bird, every single bird is busy in you know chattering, singing songs, और अल्लाह ताला की हर चीज की बनाई हुई जो अल्लाह ताला की चीज है उसका थैंक यू कर रहे हैं. Every bird is thanking the Almighty Allah. So this basically is poem about the robin who never stops singing in the 4 seasons, चाहे वो winter हो, autumn हो, spring हो और summer हो, वो गाने अपने स्वीट गाती रहती है और बताती रहती है कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और हमें हर चीज के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि व्हाट अल्लाह ताला हैज गिवन अस. और हम क्या करते हैं कि वो तो फॉर ग्रांटेड हम लेते हैं, टेक फॉर ग्रांटेड कहते हैं ना, कि बस वो तो हमें बना दिया, अल्लाह ताला ने दे दिए, तो नहीं. वी शुड थैंक लाइक रॉबिन इज थैंकिंग एवरी डे इन एवरी सीजन, है ना. अच्छा, आई होप बेटा आप लोगों को काम समझ में आएगा. अब मुझे बताओ पोयम कैसी थी, सब बताओ मुझे एक एक करके. टीचर पोएम बहुत मजे की मरियम थी. अच्छी है ना, देखो अल्लाह ताला की बनाई टीचर अच्छी छोटी भी सी थी। चिड़िया है बट मुझे टीचर अच्छी लगी. बहुत जैनब अच्छी आप थी. बताओ बेटा, डिफिकल्टी कोई मुश्किल तो नहीं लगी, पोयम समझना आसान है या मुश्किल लगी? जैनब, मरियम, उस्मान, आप बताओ बेटा, डिड यू फाइंड एनी डिफिकल्टी? पोयम समझ में आ गई? मरियम हुसैन, आप बताओ बेटा. और ये आई थिंक जोया या हिबा में से किसी का नंबर है. अफाक अहमद या बीबी फातिमा, बेटा आपका नंबर है ये. 821380 किसी के नंबर पे लिखा हुआ है बेटा. फोन पे अपना अपनी नाम की एंट्री कीजिए ताकि मुझे पता चल सके मेरे बच्चों में से कौन कौन प्रेजेंट है. मिस मुझे समझ आ गई. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, वील डू वन थिंग, जल्दी से मुझे अपनी अपनी पिक्चर्स दिखाओ. मरियम हुसैन, तुमने बड़ी छोटी सी पिक्चर डाली हुई है, तुम्हारी है ये? उस पिक्चर इज देयर. टीचर फागवन मुश्तबा. आपकी तस्वीर सही नहीं आ रही है अफाक अहमद वाली. थोड़ा मुंह नीचे करो. हाँ मुस्तफा. मुझे मरियम उस्मान इसकी ये पिक्चर नजर नहीं आ रही मुझे. अलीशा मिस बुला रही है. बेटा मुझे अटेंडेंस आपकी मार्क्स जी. मुझे अटेंडेंस मार्क्स करनी है बेटा, तुमने नजर नहीं आई आपकी बच्चों को कैसे. हाय मैडम. हेलो मरियम, मेरी संगीता, स्माइल. मैं इसको सलाम किया. जोर से सलाम. चलो हम अब काम स्टार्ट करेंगे. जल्दी से अपनी कॉपी निकालो, फटाफट से रॉबिन का टाइटल पेज बनाओ. मिस कौन सा काम करेंगे? अरे आप आज रॉबिन जो हमने पोएम पढ़ी है इसका टाइटल पेज बनाएंगे. 1 पेज राइटिंग होमवर्क से करेंगे. डिफिकल्ट वर्ड्स लिखना स्टार्ट करो. जल्दी से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. चलो ये पेज नंबर राइटिंग का हो गया. अलीशा जल्दी करो.
WRITEN। इसके बाद टाइटल पेज बनाना। पहले टाइटल पेज बनाएंगे रॉबिन का। किसके बाद? जब आपका काम कंप्लीट हो गया है ना, जी आपने ये वाला काम कंप्लीट कर लिया ना तो सारा जी नाउन्स और उसकी जो हमने डेफिनेशन की थी, चैप्टर की एक्सरसाइज करी थी डॉरोथी मेज द स्केयरक्रो के बाद। चैप्टर नंबर कौन सा है ये? आलिशान सीधा बैठो। इसके बाद जी जी चलो पकड़ो, मिस राइटिंग करानी। वन पेज राइटिंग का पेज छोड़ के डिफिकल्ट वर्ड्स की हेडिंग डालिए। डिफिकल्ट वर्ड्स लिखो। रॉबिन का टाइटल पेज, वन पेज राइटिंग। राइटिंग देखो हेडिंग डली हुई लिखो है बट यू विल डिफिकल्ट डू द वर्ड। राइटिंग ऑन द डिफिकल्ट सब्जेक्ट। लिखो W। नीचे अगले पेज पे हेडिंग डालिए, ये करिएगा क्या है? कोई भी। राइटिंग पेज है ये नेक्स्ट तो। पेज पे हेडिंग डालिए। ये लिखो डिफिकल्ट वर्ड ये रहा ना, टाइटल DI। पेज क्या लिखना है? डिफिकल्ट वर्ड्स। अलिशान राइटिंग सीधी फर्स्ट करो ना, वर्ड मैं इज बहुत चैप्टर ऑटम। मालूम कर दिया। ऐसा मार खाएगा तो मेरे हाथ से। तो क्या टाइटल पेज लिखना है मिस? फर्स्ट वर्ड इज मिस ऑटम, AUTUMN, autumn. AUTUMN, autumn. ये टाइटल पेज है। नंबर 2। नो बेटा टाइटल पेज ये है। Title page like this, and then you will do one page writing. Writing के बाद you will write the difficult words. Difficult words की heading डाल लीजिए। सबक और मिस बता रही। First word is autumn, AUTUMN, autumn. Second word is mild. जी सीधा बैठ के लाइन में लिख। नहीं नहीं, राइटिंग के अगले पेज से करेंगे ना, हमेशा जिस तरह करते आए हैं हम। We जल्दी will do करो। in the same way. First page title page, second page writing, third page पे difficult words. कहाँ गया? टीचर प्लीज इनको दिखा दे। कैमरा के बंद है। टीचर नहीं आ रहा बस। अब सही है। Autumn might sweetly praise bright. Only 5 words are there. 5 हम लोग करेंगे स्वीट SW। Autumn might, MIGHT, might. Sweetly, SWEETLY, sweetly. Praise, PRAISE, praise. Bright, BRIGHT, bright. लिखो प्रेड P डिफिकल्ट वर्ड्स हैं ये, डिफिकल्ट वर्ड्स लिखिए, इसके बाद वर्ड्स मीनिंग की हेडिंग डालिए। नेक्स्ट पेज। IST। मिस एक मिनट। राइटिंग अलग पेज पे करेंगे, उसके BRTST। नेक्स्ट पेज पे यू विल राइट द हेडिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। बस हो गया। उसके अभी अगले पेज पे difficult जैसे word। हम करते आए हैं, हर पेज पे सेपरेट काम होता है ना। हाँ।
टीचर दूसरा दिखा दे। तो टीचर आपको मैंने सिर्फ अस्सलाम समझाने के लिए वालेकुम। कि राइटिंग करनी है आपको, तो एक पेज पे ही लिख दिया है, लेकिन आप लोग अलग अलग पेज पे लिखेंगे। पहला पेज टाइटल पेज कहलाता है हमारा, डेकोरेट कीजिएगा उसको। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड पेज हमारी राइटिंग का होता है, पोएम की राइटिंग करेंगे आप। थर्ड पेज पे डिफिकल्ट वर्ड्स की हेडिंग डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। एवरीबॉडी हैज डन, मुझे मैसेज करके बताइए ताकि मैं वर्ड्स टीचर मीनिंग आवाज लेके नहीं आऊं आ स्क्रीन रही पे। सही से। यस टीचर। आई Everybody is done. Everybody is done. मैं बोली ना, 1 मिनट रुक जा, बाबा से मिस आवाज नहीं आ रही। सबर है। मिस आवाज नहीं आ रही। क्या हुआ? मिस आवाज नहीं आ रही है। मिस आवाज नहीं आ रही है। ओके, एवरीबॉडी हैज डन। स्क्रीन चेंज कर दूं, वर्ड्स नो मीनिंग ले आऊं, टीचर। जल्दी बताइए। नो। टाइप करके बताइए मैसेज में मुझे। आई नो टीचर। मिस मिर्जा मिस कहाँ गया? मिस आई एम डन माय वर्क। नहीं आ रही है। मिस मेरी हो गई, मेरा हो गया डिफिकल्ट वर्ड। टीचर मेरा भी हो गई। टीचर मेरा भी हो गया डिफिकल्ट वर्ड। Teacher, I have done my work. जी बेटा, मैंने अनम्यूट किया है, मुझे बताइए सबने कर लिया ये? डिफिकल्ट वर्ड्स कर लिए सबने? एवरीबॉडी हैज डन। मरियम हुसैन, मरियम उस्मान। आज बिलाल की आवाज नहीं आ रही है मुझे। बेटा आप लोग मुझे बताएंगे नहीं, मैं स्क्रीन चेंज कर दूंगी फिर। वर्ड्स मीनिंग। वर्ड्स मीनिंग: praise, appreciate, comma, offer thanks. Appreciate means किसी चीज की तारीफ करना, APPRECIATE, appreciate, comma, offer thanks, OFFER, offer, THANKS, thanks. जी तस्बिया बोलिए बेटा, क्या कह रहे हो? हाँ, सलामकुम। टीचर
जी तस्बिया क्या कह रहे हो बेटा? अलीशान भी क्लास में नहीं है आज। You can take the screenshot of the work. अगर आप समझते हैं कि लेट हो जाएगा काम आपका करने में, you can take the screenshot as well. Wintry. Wintry means cold like winter. Might. M-I-G-H-T. Might. Full strength. अपनी पूरी ताकत से वो गाना गाती है. Bright. B-R-I-G-H-T. Bright. To shine, comma, glitter. G-L-I-T-T-E-R. Glitter. चमकना. Autumn, A-U-T-U-M-N, autumn, a season in which leaves fall from the trees. बेटा मैं सिर्फ आपको स्क्रीन शेयर करा रही हूँ, आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? तस्बीहा, जी तस्बीहा मैंने आपका अनम्यूट किया हुआ है बेटा। मेरी आवाज कट रही होगी क्योंकि आपको पता है नेट का इश्यूज तो होते हैं ना, लेकिन मैं आपको इस वक्त काम पे फोकस करने के लिए कह रही हूँ। फर्स्ट पेज टाइटल पेज, सेकंड पेज राइटिंग, थर्ड पेज डिफिकल्ट वर्ड्स, फोर्थ पेज पे आपका वर्ड्स मीनिंग का काम है जो अभी आप शेयर कर रही हूँ मैं। तस्बीह बोलो बेटा क्या पूछ रही थी? आस्क मी। टीचर डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। टीचर डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। तस्बीह, टीचर डिफिकल्ट वर्ड्स है। मिस टीचर डिफिकल्ट वर्ड्स करने। व्हाट मीनिंग की मीनिंग सिखाएं। टीचर डिफिकल्ट वर्ड्स करने। मिस मैंने भी ऐसे बोला था। टीचर डिफिकल्ट वर्ड्स करने। टीचर डिफिकल्ट वर्ड्स करने। ओ यार माने टीचर डिफिकल्ट वर्ड्स करने। क्यों बोल रही हूँ? टीचर जी डिफिकल्ट वर्ड्स बेटा। करने। मेरी आवाज अब आ रही है सबको? कट टीचर करके अब डिफिकल्ट नहीं आ वर्ड्स रही, चेक करने। करो। तस्बीहा, टीचर डिफिकल्ट वर्ड्स करने। आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। टीचर डिफिकल्ट वर्ड्स करने। ओके आई शो यू, डोंट वरी, मैं अभी टीचर बताती हूँ, अभी डिफिकल्ट स्क्रीन वर्ड्स वापस ले करने। आती हूँ, ठीक है? टीचर टीचर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। टीचर डिफिकल्ट वर्ड्स करने। मेरा माइक बोलेंगी वो तुम छोड़ दो, तुम काम करो। टीचर डिफिकल्ट वर्ड्स टीचर क्या पूछना है मुझसे पूछो ना। डिफिकल्ट वर्ड्स करने। लिखो ना COND सॉल्व चलिए लाइफ वर्ड्स मीनिंग जिसने कर लिए, should I move on? टीचर डिफिकल्ट वर्ड्स कोई बात करने। नहीं है तस्बीहा, you know what? I will send you the PDF on टीचर university डिफिकल्ट as well as वर्ड्स on the groups करने। also, टीचर डिफिकल्ट right? वर्ड्स So don't worry करने। about the previous work. टीचर Difficult words की भी मैं अभी करने। सामने ही लेके आ जाऊंगी, स्क्रीन डोंट वरी, स्क्रीनशॉट ले लेना। WINTER लिखा विंटर हो गया। अब ये टीचर लिखो डिफिकल्ट वर्ड्स करने। ठीक है? First take the screenshot of the words meaning, then I'll show you the word difficult words, right? Days, wintry, might, bright, autumn. लिखो Shall I move on? If anybody is left behind, please text me या मुझे बताइए वॉइस पे
everywhere full लिखा क्या आपका काम कंप्लीट हो गया है? Shall I move on? टीचर Tasbiha, you can take the screenshot of it, beta. Just take it. वर्ड्स करने टीचर हम डिफिकल्ट वर्ड्स करने Tasbiha, you can take the screenshot of this, beta. Difficult words. Then I'll move on to words meaning, right? Have you taken the screenshot, Tasbiha? टीचर चैप्टर का नाम कौन सा है वो बच्चे ने नहीं किया कर रहा है। टीचर चैप्टर का नाम कौन सा है टीचर चैप्टर का नाम कौन सा है Tasbiha, answer me, beta. अब मैंने unmute किया मैं सबके mic को, beta. Mariam Usman, Mariam Hussain, you have done. टेढ़ी आ रही है टीचर ये चैप्टर टेढ़ी आ रही है लिखा चलो। You can take the screenshot as well as you want to write in the class. दबा करो। Continue writing words meaning. टीचर चैप्टर का नाम क्या है टीचर चैप्टर का नाम क्या है मुझे बेटा आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है. टीचर चैप्टर का नाम क्या है जी लिखा भी। टीचर चैप्टर का नाम क्या है ये लिखा भी। टीचर लिख लिया। चैप्टर का नाम क्या लिखा? जी बिलाल मैं स्क्रीन पे वापस लेके आ जाती हूँ. मैं स्क्रीन पे वापस लेके आ रही हूँ. डोंट वरी मैं भी डिफिकल्ट वर्ड्स लेके आ रही हूँ. देखो फर्स्ट पेज इज टाइटल पेज. Second page is writing. Third page is difficult words. On the fourth page you will write the words meaning. टीचर आवाज बिल्कुल भी सही से नहीं आ रही है टीचर आवाज अलग अलग पेज पे कीजिएगा सब काम. राइटिंग अलग पेज पे होगी. टीचर आवाज बिल्कुल भी सही से नहीं आ रही है टीचर आवाज बिल्कुल भी सही से नहीं आ रही है टीचर आवाज बिल्कुल भी सही टीचर आवाज बिल्कुल भी सही से नहीं आ रही चलिए बस this is done. Take the screenshot of सही it. से नहीं आ रही You will be joined by Miss Aisha. Miss Aisha आपकी क्लास लेंगी, right? टीचर आवाज बिल्कुल टीचर डिफिकल्ट वर्ड लगा दीजिए मैं पढ़े नहीं है Assalamu alaikum students. Now your class science class is started. लिखो जल्दी लिखो ना। बिल्कुल भी सही Better से नहीं stop आ रही और writing. डिफिकल्ट वर्ड दिखा दीजिए Take out your science books. आवाज बिल्कुल भी सही से नहीं आ रही और डिफिकल्ट वर्ड दिखा दीजिए बेटे ये जो आप मुसलसल बोले जा रही हैं डिफिकल्ट वर्ड बंद कर दीजिए. स्टॉप. आवाज बिल्कुल भी सही से नहीं आ रही मुझे डिफिकल्ट वर्ड दिखा दीजिए जब आवाज नहीं आ रही तो कैसे लिखवा सकती हैं टीचर आपको? लिया तुमने भी. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. Take out your science books. Take out your science books. जी बेटा. आवाज बिल्कुल भी सही This is your class, science class से बेटा. नहीं बेटा ये जो डिफिकल्ट वर्ड डिफिकल्ट आ रही इनको मैं म्यूट कर रही हूँ मैं. दिखा दीजिए आप बोले जा रही हैं. सही से नहीं आ रही है और मुझे डिफिकल्ट वर्ड दिखा दीजिए आवाज बिल्कुल भी सही से नहीं आ रही काम करना ओके ट्यूशन पे करना है। स्क्रीन भी चली गई है टीचर पहली वाली स्क्रीन दिखा दीजिएगा. स्क्रीन भी चली गई है वर्ड बेटा, की class science स्क्रीन class दिखाने में शुरू थोड़ी सी रह गई. Stop talking. Stop talking now. Now science class is started. Stop. अब now science की क्लास स्टार्ट हो गई है. मिस वन वर्ड रह गया मैं बता दे सिर्फ बेटा एक दफा इंग्लिश स्क्रीन दिखा दे. इंग्लिश की क्लास खत्म हो गई है आपकी. It's your science class. आवाज बिल्कुल भी सही से नहीं आ रही है दिखा दीजिए आवाज बिल्कुल डिफिकल्ट आवाज बिल्कुल भी सही से नहीं आ रही है मुझे स्क्रीन शेयर कर दें साइंस की. वो एक बच्ची मुसलसल बोली जा रही है मुझे आवाज नहीं आ रही है आवाज नहीं आ रही. उसको म्यूट कर दें. आवाज बिल्कुल भी सही से थैंक यू. हाँ थैंक यू.
आलिशान Now, Assalamu alaikum, students. इसको Now सलाम this करो। is your science class has started. जी आपकी साइंस की क्लास स्टार्ट हो गई है. टेक आउट योर साइंस बुक्स. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. Take out your science books. Open unit number 3. And we have done unit 1 and 2. Have you done your homework? Have you done your homework? आप सबने होमवर्क कर लिया आपका? साइंस का कर लिया था। जी साइंस का होमवर्क आपको जी. तो अब आपका नया चैप्टर यूनिट स्टार्ट हो रहा है. दिस इज यूनिट 3 लिविंग ऑन अर्थ, पेज नंबर 23. ओपन पेज नंबर 23. आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए. म्यूट योरसेल्फ. अपने आप को सब म्यूट कर लीजिए और मेरा लेक्चर सुनिए गौर से. उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. फिर आपसे मैं पूछूंगी क्या करना है क्या नहीं करना. ठीक है? हैं जी. एक मिनट रुकना मार. पानी पीने जा रहे हैं तो पानी वानी पी लीजिए. और इतनी देर वैसे आप लोग टाइम बहुत ज्यादा चला गया आपका. चलिए अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 3. ठीक है? यूनिट 3 है लिविंग ऑन अर्थ, पेज नंबर 23. आपने अब तक 2 यूनिट पढ़े. पहला यूनिट था आपका ह्यूमन बॉडी और दूसरा आपने पढ़ा था कौन सा? हेल्थ एंड सेफ्टी. नाउ वी आर स्टडीइंग यूनिट 3 लिविंग ऑन अर्थ. अच्छा आपको पता है कि जमीन पे तमाम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं, है ना? सब है. लिविंग थिंग्स क्या होते हैं कुछ पता है आपको? व्हाट आर लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? तो बताएगा मुझे. व्हाट आर लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स आर अलाइव because they move, they grow, they eat, they feel, they breathe and they reproduce. Living things कौन सी चीजें होती हैं? जिंदा चीजें, जानदार चीजें होती हैं, है ना? जानदार क्यों होती हैं? क्योंकि वो हरकत करती हैं, मूव करती हैं, ग्रो करती हैं, बड़ी होती हैं और ईट खाना खाती हैं, फील यानी फील भी करती हैं, टच करती हैं तो उनको फीलिंग भी होती है और ब्रीथ सांस लेती हैं और रिप्रोड्यूस यानी बच्चे भी देते हैं, है ना? इसी तरह नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट अलाइव. क्या नॉन लिविंग थिंग्स ये सारे काम कर सकती हैं? नो. नो. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो मरी हुई चीज है. जी डेड होती हैं. दे आर नॉट अलाइव. और इनके अंदर ये सारे प्रोसेस नहीं होते. जो अलाइव होते हैं, जो जिंदा चीजें होती हैं, जानदार चीजें होती हैं, वही मूव करती हैं, वही ग्रो करती हैं, वही खाना भी खाती हैं, वही फील भी करती हैं, ब्रीथ भी करती हैं, रिप्रोड्यूस भी करती हैं. तो हम सारे आगे 1 बाय 1 सारे मेथड पढ़ेंगे. पहला आपका जो प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है लिविंग ऑन अर्थ का, वो है मूवमेंट. मूवमेंट क्या होती है? तमाम एनिमल्स और प्लांट्स मूव करते हैं. अब आप कहेंगे एनिमल्स मूव करते हैं, प्लांट्स कैसे मूव करते हैं? कभी प्लांट्स को मूव करते देखा है आपने? यस. कैसे? वो हवा हवा उड़ती है और वो मूव करते हैं. लेकिन खुद से तो मूव नहीं करते ना. तो हवा हिलाती है ऐसे, तो हम भी हिलाएंगे तो वो मूव करेंगे, है ना? दे डू नॉट मूव ना एट वन पॉइंट. यानी अपनी जगह पे रहते वो मूव नहीं करते. फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं करते. All animals and human beings move from one place to another place. एक प्लेस से दूसरी जगह पे एनिमल्स मूव करते हैं, लेकिन प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जी कहिए. जी मिस पेज नंबर क्या है? 23. पेज नंबर 23. जी 23 है. तो लिविंग थिंग्स जो है वही मूव करते हैं. और उनमें से लिविंग थिंग कौन से हैं? प्लांट्स और एनिमल्स मूव करते हैं. प्लांट्स मूव ओनली अ लिटिल, और थोड़ा मूव करते हैं. दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते क्योंकि दे आर फिक्स एट फिक्स प्लेस. ये एक जगह पर होते हैं, जमीन में मिट्टी में फिक्स होते हैं रूट्स के साथ, और ये अपनी जगह पर रहते हुए ग्रो करते रहते हैं. जब आप सीड्स बोते हैं, जमीन में सो करते हैं,
उसमें से एक छोटा बेबी प्लांट निकलता है, दिस इज कॉल्ड द सीडलिंग। वो कैसे बड़ा होता जाता है ऐसा ऐसा, आपको हरकत करता तो नजर नहीं आता, मूव करता ना। नहीं, मैं प्लांट्स का बता रही हूँ, अभी एनिमल्स का नहीं बता रही हूँ। तो प्लांट्स कैसे ऐसा ऐसा मूव करते हैं और बड़े होते चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता इतने बड़े हो जाते हैं। तो कैसे बड़े हो गए? मूव करते हैं ना, तो भी तो बड़े होते हैं, लेकिन बहुत स्लोली मूव करते हैं, बहुत लिटिल मूव करते हैं, आज थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं। अब आपके पास, हाँ, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके लीव जो है ना और जिनके फ्लावर्स मूव करते हैं। कैसे? आपने एक प्लांट देखा, मॉर्निंग ग्लोरी, ये जो आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर का फ्लावर, और इसके बाद जो है एक सनफ्लावर है, सनफ्लावर, और ये जो, हाँ, ये दोनों प्लांट जो है मॉर्निंग ग्लोरी, ये सुबह के वक्त ग्रो होते हैं। जैसे ही सन निकलता है तो ये क्या इधर लगते हैं, खिल जाते हैं। इनके फ्लावर के पेटल्स जो है ना, पत्तियां जो है वो खिल जाती हैं। और जैसे जैसे सन लाइट कम होती जाती है, यानी सन जो है सेट होने लगता है, इनके लीव्स बंद हो जाते हैं, इनके पेटल्स जो हैं, पत्तियां जो हैं बंद हो जाती हैं। और ये कैसे होता है? मूव करते हैं तभी तो बंद होते हैं ना, है ना? आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, मगर स्लोली मूव करते हैं। अच्छा, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स कैसे मूव करते हैं? अपनी लेग्स से मूव करते हैं। कुछ एनिमल की लेग्स होती हैं और कुछ एनिमल्स के विंग्स होते हैं, पर होते हैं। किन के होते हैं पर? मुझे काम देखना पड़ेगा। पर किसके होते हैं? विंग्स किसके होते हैं? कौन से एनिमल के होते हैं? बर्ड्स के होते हैं। बर्ड्स जी, बर्ड्स के विंग्स होते हैं। बर्ड्स की लेग्स भी होती हैं, जब वो जमीन पर लैंड करती हैं तो अपने लेग से भी चलती हैं, और अगर हवा में उड़ती हैं तो ये फ्लाई करती हैं थ्रू द विंग्स, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। तो एनिमल्स अपनी लेग यूज करते हैं टू सर्च फूड एंड वाटर, खाना पानी तलाश करने के लिए वो अपने टांगों से मूव करते हैं। इसी तरह हम कैसे मूव करते हैं? We use our legs ना। बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है, बर्ड है। बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा सवाल किया। बटरफ्लाई भी उड़ती है और बर्ड्स भी उड़ती हैं, और आपको पता है फ्लाइज भी उड़ती हैं, मॉस्किटो भी उड़ता है, लेकिन उनको हम बर्ड्स नहीं कहते। क्यों? किसी को नहीं पता? क्योंकि वो काटते हैं। अच्छा, मैं एक खास बताऊं कि बर्ड्स के जो है ना 2 विंग्स होते हैं, 2 पर होते हैं, है ना? बर्ड्स के, तमाम बर्ड्स के। और उनका माउथ कैसा होता है? चोंच होती है, उनकी बीक होती है। जबकि इंसेक्ट्स का क्या होता है? इंसेक्ट के 4 विंग्स होते हैं। कितने विंग्स होते हैं? 4 विंग्स होते हैं। मॉस्किटो के भी, बटरफ्लाई के भी, और हाउस फ्लाई के भी, हनी बी के भी 4 विंग्स होते हैं, 4 पर होते हैं, लेकिन उनकी टांगे नहीं होती। उनकी लेग्स कितनी होती है पता है? 6 लेग्स होती है। लेकिन बर्ड्स की कितनी लेग्स होती है? 2 लेग्स होती है। तो ये फर्क होता है इंसेक्ट में। और इंसेक्ट जो है इन्वर्टिब्रेट होते हैं, इनकी बैकबोन नहीं होती, बर्ड्स की बैकबोन होती है। सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है। सही समझ में आ गई? अच्छा, आप लोग को अपने आप को म्यूट करें। आपके पीछे से जो आवाजें आ रही है ना, घर में बोल रहे हैं सब, तो वो आवाजें बुरी लगती हैं, अपने आप को म्यूट कर लें। ओके? अच्छा, तो ये एनिमल्स जो है फूड और वाटर की तलाश में अपनी लेग्स यूज करते हैं एनिमल्स। और हमारी नानी कुछ की एनिमल्स, उसमें ना जीना में वो जी, बटरफ्लाई लिखी है। बटरफ्लाई, अच्छा आ गई होगी ना। सही से आवाज नहीं आ रही। बेटा क्यों नहीं आ रही है? अब आ रही है? मिस जी, अब आ रही है। चलिए सुनिए। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि आपको फर्क पता चल गया। ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव, ऑल प्लांट्स मूव, ठीक है, बट दे मूव ओनली अ लिटिल, ठीक है। उसके बाद आइए, हमारा ये हॉर्स बना, देखिए हॉर्स की लेग्स हैं। हाँ, बर्ड्स फ्लाई करती हैं। एयर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये सेंटीपीड है, ये बॉय है, ये आपने देखा ये कैसे मूव कर रहा है। इनकी जिनकी लेग्स हैं, बॉय की और हॉर्स के तो लेग्स हैं, तो लेग से मूव कर रहे हैं। बर्ड के विंग्स हैं, तो
पार्ट उससे फ्लाई कर रही है। और सेंटीपीड जो है ये इंसेक्ट है। ये इंसेक्ट जो होते हैं, कुछ इंसेक्ट क्रॉल करते हैं जैसे कॉकरोच है, और ये सेंटीपीड है, और ये कुछ ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो जमीन पे रेंग कर चलते हैं, उनकी मूवमेंट ऐसे होती है। ठीक है, अब आइए सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो ग्रोथ। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, तमाम जानदार चीजें ग्रो करती हैं। ग्रो करने के बाद दे गेट बिगर एंड दे चेंज द सही शेप से एज आवाज दे नहीं आ रही। गेट ओल्डर। मिस बेटा मिस मैं जब सारे बच्चों को आ रही है तो आपको नहीं आ रही है, आप अपना हैंड फ्री से मिस करें। आपकी ठीक? सही से आवाज नहीं आ रही। ये आप तंग करते रहेंगे पूरे वक्त, अपने आप को म्यूट कीजिए। As they grow, they begin to look more like their parent. जैसे जैसे बेबीज बड़े होते हैं तो कैसे हो जाते हैं, अपने पेरेंट के जैसे हो जाते हैं। प्लांट्स का भी ये सीड होते हैं, सीड से ग्रो होता है तो बेबी प्लांट निकलता है, बेबी प्लांट ग्रो होके बिग प्लांट बन जाता है, यानी ट्री बन जाता है। इसी तरह ये देखिए डक है, डक ग्रो होके जब डक अंडे देती है उसमें से जो बेबी निकलता है उसे डकलिंग कहते हैं। डकलिंग ग्रो होके डक जैसी हो जाती है ना। इंसान भी ऐसी, इंसान के जो बेबीज होते हैं ये ग्रो करके यंग होते हैं, फिर यंग से एडल्ट बन जाते हैं। तो इस तरह तमाम लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो करती हैं, लेकिन सबके ग्रो होने के कुछ एनिमल्स दूसरे तरीके से होते हैं, और सबका एक खास पॉइंट पे जाके इनकी ग्रोथ रुक जाती है। आपकी भी जैसे ग्रोथ होती है, बड़े होते हैं तो 20 इयर्स तक आपकी ग्रोथ होती है, 20 से 25 इयर्स तक, उसके बाद आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आप बड़े हो जाते हैं। अच्छा, तो समझ में आ गई ग्रोथ कौन सा पॉइंट है। ग्रोथ भी लिविंग थिंग का एक लाइफ लिविंग प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ये फीडिंग। फीडिंग क्या है, फीडिंग किसे कहते हैं, ईटिंग को कहते हैं, ईटिंग फूड, ईटिंग फूड, हाँ खाना खाने को हम फीडिंग कहते हैं। विदाउट फूड एंड वाटर लिविंग थिंग्स वुड डाई। फूड और वाटर के बगैर तो तमाम लिविंग थिंग्स मर जाएंगे, ऐसे ही होगा, है ना। अगर पानी ना मिले, फूड ना मिले तो क्या होगा, हम मर सकते हैं ना। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट हमारा लाइफ प्रोसेस है, जो हमारी बॉडी का फंक्शन है, ये जरूर होना चाहिए। तब सम एनिमल्स ईट प्लांट्स। अच्छा, एनिमल्स भी डिफरेंट, एनिमल्स जो होते हैं डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स हैं इनकी। कुछ एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, इन्हें हर्बीवोर कहते हैं। सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल। जो एनिमल दूसरे एनिमल का गोश्त खाते हैं उन्हें हम कार्निवोर कहते हैं। और जो एनिमल्स और टीचर हमने वाइल्ड भी कहते हैं। और हाँ, प्लांट्स और एनिमल्स गोश्त दोनों खाते हैं। खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ओमनिवोर। हम लोग कौन है, हर्बीवोर, कार्निवोर या ओमनिवोर? ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर ओमनिवोर। ओमनिवोर क्यों? क्योंकि हम प्लांट भी खाते हैं और हम मीट भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं, इसलिए वी आर ओमनिवोर। तो इस तरह ये ईटिंग, सबकी अपनी ईटिंग हैबिट है, और ये ईटिंग हैबिट जो है तमाम एलिमेंट्स की, एनिमल्स की और प्लांट्स क्या खाते हैं, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल्स का आप ये देखिए, दूसरा ये पेज खोलिए, पेज नंबर 25 पर आइए। एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ्स। मुख्तलिफ एनिमल्स के मुख्तलिफ तरह के मुंह होते हैं। कभी देखे आपने टाइगर का कितना शार्प टीथ होते हैं, इसी तरह जो टीचर, वो फॉक्स होते जब हैं जी। बारिश की टीचर जब बकरीद आई थी ना, तो हमारी जी। तरफ में ना से एक मेंढक आ गया था, पूरा मेंढक का बच्चा। तो उसको बारिश खाते की हुए देखा था, बरसात कैसे में खाता है? बकरीद। हाँ, हाँ कैसे बस खाता, उसने कभी खा? मक्खियाँ, मैं उसमें मक्खी जा रही, इतनी जबान उसने इतनी लंबी करी, उसको पकड़े खा लिया। ये देखिए आपके सामने बना है ना, आपकी बुक में ऐसे ही फ्रॉग है, ऐसे ही था। यस पता टीचर। है क्या इसकी टंग कैसी होती है? इसकी टंग जो है आगे से जुड़ी हुई होती है और पीछे, हमारी तो पीछे से जुड़ी होती है ना, यस। फ्रॉग की टंग आगे से जुड़ी होती है और अंदर की तरफ जाती है, ये हलक में जाती है, और ये उल्टा करके निकालता है और ऐसे ही फेंकता है उसकी तरफ, यानी इंसेक्ट की तरफ अपनी टंग को, वो उसमें चिपक जाती है। उसकी स्टिकी टंग होती है चिपकने वाली, तो उसमें इंसेक्ट चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है, और ये वापस मिस ब्राउन कलर का मेंढक था निगल बिल्कुल। लेता है जी।
ब्राउन कलर ब्राउन का भी होते हैं, मेंढक। ब्लैक भी होते हैं फ्रॉग जो है, और ग्रीन भी होते हैं। ठीक है। टीचर अच्छा, फ्रॉग की ईटिंग हैबिट। बकरीद से पहले हमारे यहाँ पर बारिश हुई थी, तो ना मेरे दो भाई आए हुए थे नीचे, मुझे और मैं बारिश में नीचे नहाने गया हुआ था, सुबह हो रही थी, तो ना मेरे भाई ने क्या, जो बत्तख को खाना खिलाते हैं, जब हमने देखा ना उधर कीचड़ हो रही पिंजरे में, देखा बत्तख ने मछली निकाल के खा ली कीचड़ में से। क्यों, बतख खाती है ना, फिश खाती है डक जो है। तो आपको ये भी पता चल गया डक क्या खाती है। डक की जो है टीथ नहीं होते हैं, उसकी बीक होती है और वो सॉलो कर लेती है। वो अपने जो एनिमल जो भी खाना है, हाँ, डायरेक्ट खा लेती है। तो बर्ड्स के भी टीथ नहीं होते, आपको पता है, बर्ड्स के भी टीथ नहीं होते। बर्ड्स भी अपना खाना जो है चोंच से खाती है और उसको निगल लेती है। फ्रॉग का भी यही है, फ्रॉग भी ऐसे ही है। अपने फ्रॉग और लिजर्ड दोनों जो है, इनकी स्टीकी टंग होती है। लिजर्ड की भी लंबी सी टंग होती है और ये भी इंसेक्ट्स को कैच करके निगल लेती है। लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जो नोच के और ग्राइंड करके च्यू करके खाते हैं, जिनके शार्प टीथ होते हैं, जैसे लॉयन है, टाइगर है, फॉक्स है। इनके कैसे होते हैं, शार्प टीथ होते हैं। बेयर है, बेयर तो लीव्स खाता है, बेयर कुछ नहीं। डॉग है, कैट है, इनके टीथ होते हैं और शार्प टीथ होते हैं। और ये, हाँ, इन सब के शार्प टीथ होते हैं। ये टेयर करते हैं, खाने को चीरते हैं, नोचते हैं, फिर ग्राइंड करते हैं और च्यू कर लेते हैं। उसके बाद देखिए प्लांट्स अपना खाना कैसे खाते हैं। प्लांट्स दे कैन वाटर थ्रू देयर रूट्स। प्लांट्स अपना खाना, जब अपना पानी जो है वो रूट से लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना खुद तैयार करते हैं, पानी जो है वो रूट से लेते हैं और खाना ये खुद तैयार करते हैं। कहाँ पे, आपकी के सही से लीव्स। आवाज नहीं आ रही मिस। बेटा अभी आ रही होती है, थोड़ी देर में आप आपकी कहते सही हैं कि से नहीं आ आवाज रही होती है। आप तंग कर रहे होते हैं, आप तंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्वाइट प्लीज। आपको आ रही है साफ? आप अभी आप मुझे रिप्लाई कर रहे थे और अभी आप कह रहे हैं कि आपको आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अब आइए, हमारा 4th पॉइंट है, हमने मूवमेंट पढ़ा, ग्रोथ। अब तीसरा है हमारा फीलिंग, है ना। फीलिंग में क्या होता है, जैसे हम लोग फील करते हैं, कैसे फील करते हैं, हाथ से, टच, है ना। हमारा जो एक सेंस है टच, हाँ, टच का एक सेंस मेरी है। स्क्रीन तो बिल्कुल ग्रीन हो गई। आप आपको देखिए, आपको पता चलेगा कहाँ स्क्रीन हो गई है। मेरे पास तो आ रही है, मैं तो मूव कर रही हूँ, आपको कैसे ग्रीन हो गई? मिस आपकी अब सही हुई है मिस। चलिए, अच्छा, फीलिंग पे आइए। हम लोग फील करते हैं, जैसे हम टच करते हैं, हमें गर्म और ठंडा सा फील होता है। तो कोई गर्म चीज होती है तो वो हमें फील होती है, कोई चीज चुभ जाती है तो हमें फील होता है। इसी तरह एनिमल्स को भी फीलिंग्स होती हैं। एनिमल्स फील डिफरेंट वेज। एनिमल्स का दूसरा तरीका होता है फील करने का। इनके पास ये सेंस सारे एनिमल्स में होता है, बट यूज देम बाय यूजिंग देयर आईज, नोज, स्किन, एयर्स। हमारे भी सेंसेस होते हैं ना, यही सेंस है ना, कितने सेंसेस हैं? 5 सेंसेस होते हैं फीलिंग के। तो कुछ आईज से करते हैं, कुछ एयर से, कुछ नोज से, कुछ टंग से। इस तरह ये एनिमल्स यूज देयर सेंस ऑर्गन्स टू सर्च फूड एंड टू सेंस डेंजर। प्लांट डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन। प्लांट के सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, बट दे टू कैन फील। बट ये भी फील करते हैं, प्लांट भी फील करते हैं। एनिमल्स फील करते हैं, इनकी नोज होती है, आईज होती है, ईयर्स होते हैं, टंग होती है। लेकिन प्लांट्स की भी, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हम टच करें तो वो अपने लीव्स को बंद कर लेते हैं, बिकॉज दे फील, है ना। ये भी फील करते हैं। जब हम इनको प्यार से रखते हैं, उनको पौधों को, तो वो बहुत खुश होते हैं, पता है, क्योंकि लिविंग थिंग है और ये फील करते हैं। उनके पत्तों को हाथ लगाए। एक प्लांट है मिमोसा प्लांट, जिसे छुई मुई का पौधा कहते हैं। इसको हम टच करें तो ये अपने लीव्स को बंद कर लेता है, बिकॉज इट हैज सेंसिटिविटी। इसके अंदर सेंसिटिविटी होती है, फीलिंग्स होती हैं, इसलिए ये फील करते हैं। उसके बाद देखिए हमारा 5th पॉइंट है, क्या है? ब्रीदिंग, है ना। फीलिंग्स हमारे ब्रीदिंग।
ब्रीदिंग में क्या करते हैं हम लोग? फीडिंग हो गया, सांस लेते हैं। फीडिंग हो गया, सांस लेते हैं। ऑल ह्यूमन beings and animals and plants breathe, they breathe in air, है ना? सारे एनिमल्स और प्लांट जो है ब्रीथ करते हैं। हम कैसे ब्रीथ करते हैं? थ्रू द नोज, है ना? थ्रू द नोज करते हैं। फिश कैसे ब्रीथ करती है? फिश कैसे ब्रीथ करती है? किसी को पता है? मुंह से How do ब्रीथ fish करती है पानी। मुंह से नहीं करती है, उसके गिल्स होते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, उसके गलफड़े होते हैं। हमारे तो लंग्स होते हैं ना, फिश के गिल्स होते हैं। जो आपने देखा उसके फिश के मुंह के साइड पे रेड रेड नजर आता है, उसके फ्लैप्स के नीचे, वो गिल्स होते हैं रेड कलर के। फिश मुंह से पानी लेती है और गिल से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है। लेकिन उसके नॉस्ट्रिल होते हैं, जैसे हमारी नाक के नथने होते हैं ना नॉस्ट्रिल, इसी तरह फिश के नॉस्ट्रिल होते हैं, लेकिन ये स्मेल करती है अपने नॉस्ट्रिल से, अपने नॉस्ट्रिल से ब्रीथ नहीं करती, ये अपने गिल से ब्रीथ करती है। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स व्हाइल ऑल एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज। सबकी नोज होती है, सब नोज से अपनी ब्रीथ करते हैं। लिली मिस, आपने जी बेटा। कभी फ्लाइंग फिश देखी है? जी देखी है, वो उड़ती हुई, उसके दो जो फिन्स होते हैं ना वो फ्लैट होते हैं, और ये एकदम फ्लैप करती हुई ऊपर आती है, फिर वापस पानी में चली जाती है। लंग फिश भी कहते हैं उसको। टीचर, मम्मा ने क्या हेलो टीचर, मम्मा ने बताया था कि रेगिस्तान में उड़ने वाले सांप होते हैं। रेगिस्तान में क्या होता है? उड़ने वाले क्या होता है? जी, सांप। वो ऊपर की तरफ तेजी से जाते हैं, उड़ते इसी तरह से है वो, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं उड़ते। ये कौन है? ये क्या कर रहे हैं? कौन है ये? टीचर मरियम उस्मान। मरियम, आपको म्यूट कर दें हम? मरियम उस्मान। अच्छा, प्लांट ब्रीथ करते हैं? प्लीज पेरेंट्स गाइड हर। प्लांट्स ब्रीथ टू, प्लांट भी ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। आपको पता है प्लांट कैसे सांस लेते हैं? प्लांट्स के लीव्स में, ग्रीन लीव्स जो होते हैं उसमें पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, होल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा से एयर जो है लीव्स के अंदर जाती है और प्लांट्स सांस लेते हैं। टेक इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह रात में क्या करते हैं? रात में ये करते हैं, और दिन में क्या करते हैं? ब्रीथ आउट ऑक्सीजन एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हुआ? सबके अब कपड़े नजर आ रहे हैं, खोलो। मैम प्लीज आप अपने आपको म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। जी, अब आइए, कौन से चेक निकालिए बेटा? कौन से चेक कहाँ पर है? कौन से पेज पे है? जल्दी बताएंगे। पेज नंबर 26 पर आइए। पेज नंबर 26 पर आइए, ठीक है जी। हमें ये सेंटेंसेस कंप्लीट, जी इसमें हमें सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, ठीक है। नंबर 1 ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं, उसको देखते हुए हमें फिल करना है। डैश लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ऑल, सम, नो। डैश लिविंग थिंग्स ब्रीथ, all, some, All. या no? All. Teacher, all. So आप write all in number 1. Number 2. Fish. Number 2 में देखिए, fish dash throw dash. Fish क्या करती है? Eat करती है या breathe करती है? Breathe. तो पहले blank में क्या आएगा? Breathe. Write breathe in first blank. Throw gills या throw fins? Teacher, wheels. Gills. Gills, teacher, gills. Yes, gills. Fish breathe through gills. ठीक है। Number 3 है, have you written? सबने लिख लिया?
ये बेटा जो गाना गा रहे हैं ना, प्लीज जो पेरेंट्स हैं, गाइड योर चाइल्ड प्लीज। नंबर 3, लीव्स टेक इन डैश। लीव क्या करते हैं? डैश लेते हैं, गिल थ्रो डैश। एयर 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 टीचर एयर हाँ, स्टोमेटा से लेते हैं या फ्रूट से लेते हैं? थ्रो स्टोमेटा या थ्रो टोमेटो फ्रूट? से यस, टोमेटो स्टोमेटा से से। वेरी गुड, ऑल हैव डन। सबने कर लिया? यस टीचर चलिए अब आइए, हमारा जो लास्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन, नंबर 6 पॉइंट, रिप्रोडक्शन। आपने पढ़ा था कि ये अब तक पढ़ा के तमाम लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, ऑल लिविंग थिंग्स फीड, ऑल लिविंग थिंग्स फील, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। नाउ यहाँ पे पढ़ेंगे ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर बेबी, ठीक है ना। एनिमल्स गिव बर्थ यंग बर्थ। एनिमल्स जो है वो बेबीज देते हैं, है ना, और ये बेबीज बड़े होके अपने पेरेंट के जैसे एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। इसी तरह बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले जानवर हैं, इंसेक्ट्स हैं, दे प्रोड्यूस एग। ये क्या देते हैं? ये अंडे देते हैं, है ना। एनिमल्स क्या करते हैं? बेबीज देते हैं, जबकि बर्ड्स जो हैं, जो बर्ड्स हैं, रेप्टाइल हैं, इस तरह के एनिमल्स जो हैं, जो रेंगने वाले जानवर हैं या परिंदे हैं, इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये प्रोड्यूस एग्स। फिश भी एग देती है, और ये इनके बेबीज जो हैं बड़े होके इनके पेरेंट जैसे हो जाते हैं, यंग वंस होते हैं, फिर बड़े होते हैं, एडल्ट के जैसे हो जाते हैं। खत्म। चलिए, ये लास्ट हमारा था टॉपिक। उसके बाद हैबिटेट्स और इकोसिस्टम हम बातें करेंगे, और आपको मैंने होमवर्क दिए हैं, क्वेश्चन आंसर यू विल डू, ठीक है। सब बहुत अच्छे से कॉपी में कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, पीडीएफ आपके पास आ जाएगा। जी, मैं क्वेश्चन सारे मैं इसमें नहीं, आपके बुक में ये क्वेश्चन मैंने आपको सेंड किए हैं, वो आप खुद करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी, उसमें से देख के कीजिएगा, ठीक है। ओके, अब हम अटेंडेंस ले रहे हैं, जाइए स्क्रीनशॉट अटेंडेंस का। एक मिनट बेटा, अभी जाइएगा नहीं सबके, अभी हम अटेंड पीडीएफ आपके यूनिवर्सिटी पे आएगी बेटा। मेरे पास नहीं आती। चले बेटा, ओके ओके, आ जाइए, आ जाइए। ओके, अल्लाह हाफिज, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, सब बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। यस अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज टीचर। दोनों से था तो अल्लाह हाफिज टीचर। बिलाल क्या हुआ? बिलाल, ये थर्ड वाले का बताना आंसर। वही तो है, वही है, वही समझे ना। कौन सा? बच्चे की तो ये साइंस में, दूसरे बच्चे ने भी कहा आवाज नहीं आ रही। ये जो नहीं फोर्थ वाला कॉपी का या बुक का? बुक में यही बच्चा बेचारा, अच्छा मेरा बच्चा।